Welcome students, I hope you all are fine and taking good care of your health at your home. Today we will start our lecture number 1, class 5 and subject science. From your science subject, it's your third term students, so we will start your unit number 6. Its name is natural resources, and from this it's chapter number 11. Its name is air and water, sports, life. Natural resources, by the name you get to know that in this unit we will discuss about the natural resources. Natural resources means अल्लाह पाक ने जो कुदरती तौर पर resources इंसानों के लिए या कितने भी living beings हैं उन सब के लिए पैदा किए हैं, इस यूनिट में हम वो सब डिस्कस कर रहे हैं. और आपके चैप्टर नंबर 11 में उनमें से दो जो मेन हैं एयर एंड वाटर, इनको हम डिस्कस करेंगे. एंड दे बोथ स्पोर्ट्स आर लाइव्स. Sports, the lives of all living beings. So first of all students, there is a warm-up exercise from your book, page number 97. Open up your book, page number 97. There is a warm-up exercise. In your warm-up activity, you have to draw one thing that uses air and one thing that uses water. You have to draw one thing for the use of water and the use of air. मैं थोड़ी आपकी हेल्प कर देती हूँ इस सिलसिले में. आप जो एयर के लिए यूज ऑफ एयर के लिए ड्रॉ करेंगे, आप बलून ड्रॉ कर सकते हैं, आप काइट ड्रॉ कर सकते हैं. आफ्टर दैट यूजेस ऑफ वाटर, वाटर जो है वो यूज करता है प्लांट. आप कोई भी प्लांट ड्रॉ कर लीजिए जिसमें वाटर थ्रो कर आप शो करें कि प्लांट यूजेस वाटर. इन स्पाइट ऑफ दैट यू कैन ऑल्सो ड्रॉ अ फिश. फिश भी पानी का यूज करती है. बेटी नाउ कम ऑन द टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक इज द एयर एंड एटमॉस्फेयर. You already heard about the word air and atmosphere. What is the importance of air and atmosphere in our regular life, in our routine life? In air, the single one use जो आप नॉर्मल देखते भी हैं कि हम हवा में सांस लेते हैं. देखिए हवा हमारे लिए कितनी जरूरी है. हम हवा में सांस लेते हैं. अगर हवा नहीं होगी, we are unable to live our lives. हम अपनी जिंदगी को सरवाइव करने के काबिल नहीं होंगे और क्या होगा, हम सब जो है वो डाई कर जाएंगे, हम सबकी डेथ हो जाएगी. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इज दैट वी कैन ब्रीथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. एंड वेयर इज एयर प्रेजेंट? एयर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर वैसे हम बेटे एक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, आबो हवा. हम इस एटमॉस्फेयर को डिटेल में आज रीड करेंगे. एटमॉस्फेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स. यू कैन सी ऑन द बोर्ड देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. द टॉपिक फ्रॉम द टॉपिक एटमॉस्फेयर इज द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. एंड लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर यू कैन सी देयर आर 5 layers of atmosphere. How many layers of the atmosphere are there? There are 5 layers of atmosphere. Their names are troposphere. By the name you can know that first layer or the first sphere of the atmosphere is the troposphere. The second sphere of the atmosphere is stratosphere. Third one is the mesosphere. Ozone is the layer. You can see that is not the sphere, it's just the layer. Ozone layer is between the strato and mesosphere. Third one is the mesosphere. Fourth one is the thermosphere, and last and fifth one is the exosphere. So first of all I'll discuss with you what things are present in these spheres और इनकी क्या क्या स्पेशलाइजेशंस हैं. तो मेरे सबसे पहले मैं आपको ट्रोपोस्फियर को डिस्कस करूंगी. ट्रोपोस्फियर इज द फर्स्ट लेयर. बाय द डायग्राम यू कैन सी दैट दिस इज द फर्स्ट लेयर and it is present in almost 10 kilometers area of the sphere. Means जमीन से ऊपर जितनी हवा, जिस हवा में हम रहते हैं बेटे, जिस हवा से हम सांस लेते हैं, that is called as the troposphere. जिस हवा में परिंदे उड़ते हैं, that is called as the troposphere, and it is almost in 10 kilometers of the sphere. So बेटे troposphere is the first layer and it closest to the surface of the earth. It consists of gases that we breathe in. All the weather phenomena occurs in this layer. तमाम जो वेदर फिनोमेना है, मीन्स बारिश का होना, बादलों, वेदर क्लाउडी होना, सनी होना, ये सारा ये ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट स्फीयर इज द स्ट्रेटोस्फेयर. यू कैन सी ऑन द बोर्ड. स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकंड स्फीयर ऑफ द एटमॉस्फेयर
एंड जेट एयरक्राफ्ट, अब जो हवाई जहाज या जो फ्लाई करती हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में करती हैं, बिकॉज देयर इज नो डिस्टर्बेंस ड्यू टू वेदर ओवर देयर। यहाँ पर ये वेदर इफेक्ट से ऊपर वाली लेयर है, मीन्स जो बादल हैं, जो बारिश होने का सिलसिला है, जितने जो बर्ड्स फ्लाई का सिलसिला है, वो इससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, बिकॉज देयर इज नो डिस्टर्बेंस बाय द वेदर एंड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। Because there is no disturbance due to weather there, it contains ozone gas. You can see there is ozone layer, and what is the function of the ozone layer and what is the importance of the ozone layer? I'll tell you that ozone layer protect the earth from the harmful UV rays by the sun. जो सूरज से अल्ट्रावायलेट नुकसानदेह रेज आती हैं, ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करती है। Means it is a very useful and very beneficial for the living beings, for all the living beings. It controls the temperature on the earth also, because ये high temperature rays को जमीन तक पहुंचने से रोक लेती हैं, स्टॉप कर लेती हैं। After that beta mesosphere comes. Mesosphere is the third sphere in the atmosphere. The third layer is the mesosphere, and meteorites or the pieces of the rocks. Meteorites, beta, there's word used in your book, page number 98. You can see meteorites are the small metallic or the solid objects which are fallen by the upper space. Means जो आप एक्सोस्फीयर देख रहे हैं, एक्सोस्फीयर से जो ऊपर की स्पेस होती है वो आउटर स्पेस हम काउंट करते हैं। और आउटर स्पेस में आपको पता है देयर आर डिफरेंट बॉडीज जो रिवॉल्व कर रही हैं स्पेस में, जो घूम रही हैं, ऑर्बिट कर रही हैं। अब वो बॉडी जो लाइट इन वेट हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ मेटियर्स, हम उन्हें मेटेराइट्स भी कहते हैं। वो मेटेराइट्स जो हैं वो फॉल करते हैं इन मेसोस्फीयर, और वो वहीं पर जो है बर्न अप इन दिस लेयर, वहीं पर जो है वो बर्न अप हो जाते हैं, जल जाते हैं, वो जमीन तक नहीं पहुंच पाते। आफ्टर दैट बेटे थर्मोस्फीयर, फ्रॉम द वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड थर्म मीन्स हीट। थर्मोस्फीयर, अब ये स्फीयर क्या करता है? इट इज द नेक्स्ट लेयर टू द मेसोस्फीयर। स्पेस शटल्स ऑर्बिट इन दिस लेयर। जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो इसी लेयर में जो है वो भेजे जाते हैं और यहाँ पर ऑर्बिट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, जो भी डाटा इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए सेंड किया जाता है शटल्स को या सैटेलाइट्स को। आफ्टर दैट नेक्स्ट एंड फाइनल लेयर, लास्ट लेयर इज द एक्सोस्फीयर. Exosphere is the uppermost layer of the atmosphere. From here the atmosphere merges into the outer space. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक्सोस्फीयर के बाद आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाती है जो नॉर्मली रीच में नहीं होती, यानी हम जो है हमें जो प्रोटेक्ट करें ये 5 स्फीयर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारी अर्थ को, अर्थ की लिविंग बीइंग्स को. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. अब ये एटमॉस्फेयर मैंने आपको जो लेयर्स की डिस्क्रिप्शन दी है, आपको डिटेल बताई है बेटे, ये हमारे लिए क्यों अहम है और कैसे अहमियत रखता है ये हम डिस्कस करें. द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ. इसकी जो सबसे अहम बात ये है कि ये जमीन पर लाइफ का, जिंदगी का सिलसिला जो जारी है वो जस्ट इन एटमॉस्फेयर्स की जो भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इनकी वजह से है. प्रेजेंस, बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर. इस ऑक्सीजन की हेल्प से देखें हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, एंड दस इट सपोर्ट्स द लाइफ. आफ्टर दैट ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी टू क्रिएट फायर. आपको पता है ऑक्सीजन इज द बर्निंग गैस. ऑक्सीजन गैस जो है बेटे वो जलने में हेल्प आउट करती है. और इसके अलावा गैसेस की जब हम बात करें तो थोड़ा आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ. ऐसी गैसेस भी होती हैं बेटे जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं जो जलने के या फायर के प्रोसेस को रोक देती हैं. अब उन गैसेस को हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशिंग गैसिंग. अब ये भी हम डिस्कस करेंगे इन द टॉपिक ऑफ एयर. एयर की जब कंपोजिशन हम रीड आउट करेंगे बेटे, मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी कौन सी गैसेस ऐसी हैं जो आपको जलने के प्रोसीजर में हेल्प करती हैं और कौन सी गैसेस हैं जो जलने का प्रोसेस स्टॉप करवा सकती हैं. नाउ बेटे एटमॉस्फेयर रिसाइकल्स वाटर ऑफ द अर्थ. एटमॉस्फेयर, आप देखें बारिश जो होती है, रेनिंग जो होती है, ये एटमॉस्फेयर में ही होती है. क्लाउड्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. तो ये क्या है, वाटर को रिसाइकल करने में भी हेल्प करती है. इसके अलावा मेसोस्फेयर में हमने रीड आउट किया था कि जितने भी मटेरियल्स हैं वो आउटर स्पेस से जो फॉल होते हैं
वो बर्न अप हो जाती हैं इन द मेसोस्फीयर और जमीन तक नहीं पहुंच पाते, तो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द लाइव्स ऑन द अर्थ फ्रॉम द meteorites. Most of the sounds we hear travel through the air. The main important function or importance of the air is that most of the sound travels in the presence of air. अगर हवा देखिए, जो हवा के में पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, and sounds are what? Sounds are the vibrations which travels through the air particles. Sounds वो vibrations है बेटे जो air particles के थ्रू travels करती हैं. अगर air मौजूद ही नहीं है, हवा जो है वो स्टिल है, एटमॉस्फेयर कंडेंस हो गया, तो क्या होगा, साउंड वेव्स को, साउंड की वाइब्रेशंस को चलने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा. वाइब्रेशंस कैसे होती हैं, एक पार्टिकल टकराता है दूसरे पार्टिकल से, नेक्स्ट पार्टिकल कोलाइड करते हैं नेक्स्ट वन से, तो क्या होता है, वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है. और साउंड्स आर द वाइब्रेशंस व्हिच ट्रैवल्स थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ द एयर. तो क्या है, एयर है तो हम सब कुछ सुन सकते हैं, अगर हवा नहीं होगी तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा. द नेक्स्ट टॉपिक इज द एयर, हवा. अब फिर हम हवा पर आ जाते हैं बेटे. वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक कंपोजिशन ऑफ द एयर, यानी हवा जो है वो बेसिकली किन किन चीजों से मिलकर बनी है, कौन कौन सी गैसेस मौजूद है हवा में, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, हवा की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंस भी इसमें डिस्कस करेंगे, एंड यूजेस ऑफ एयर, और हम हवा को कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं. तो बेटे आप अपनी ये डायग्राम में देख सकते हैं, देयर इज द सर्कल, और इसमें मैंने एक रेंज दिखाई है, एक परसेंटेज दिखाई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, और वो किस किस परसेंटेज में मौजूद है. मोस्टली अकरिंग गैस इज द नाइट्रोजन गैस. यू कैन सी इट्स परसेंटेज इज 78%. मीन्स नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है. आफ्टर दैट ऑक्सीजन कम्स इन. द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज 21%. The 1% is the other gases which are present in traces amount. वो बहुत जो है वो बेटे कम अमाउंट में मौजूद होती हैं गैसेस, एंड these are all of 1%. इसकी मैं गैसेस के कुछ नेम भी आपके साथ डिस्कस करूंगी बेटे. Now come on your book page number 98. Composition of the air. Air is a mixture of various gases. The two main gases present in the atmosphere are the nitrogen and oxygen. You can see that nitrogen is present is about 78%, and oxygen is present of about 21%. तो बेटे ये मेन गैसेस हैं और मोस्टली अकरिंग गैसेस हैं. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नेम सुना है आपने, ओजोन गैस का नेम सुना है, हीलियम गैस का नेम सुना है, हाइड्रोजन गैस का नेम सुना है. ये तमाम गैसेस जो है वो ट्रेसेस अमाउंट में पाई जाती हैं, ट्रेसेस में होती हैं, कम अमाउंट में पाई जाती हैं, और तकरीबन ये सारी गैसेस जो है वो 1% इनकी क्वांटिटी है, 1% है इनकी एटमॉस्फेयर में. अब इसके बाद बेटे नाइट्रोजन इज एन इम्पोर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट. आप प्लांट न्यूट्रिएंट इसे क्यों कहते हैं, आपने ज्यादातर अगर आप ने क्रॉप्स को डिस्कस किया है तो एक फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स. तो बेटे इसमें अमोनिया फर्टिलाइजर भी होता है. ये सारे किसके, नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स हैं. ज्यादातर जो है अमोनिया फर्टिलाइजर यूज किया जाता है मोस्टली क्रॉप्स की प्रोडक्शन में. तो बेटे नाइट्रोजन इज द इम्पोर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट. नाइट्रोजन नीदर बर्न्स नॉर सपोर्ट्स बर्निंग. अब जैसे मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, सिमिलरली नाइट्रोजन गैस जो है इट नेवर हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. मींस अगर हवा में एक्सेस अमाउंट है नाइट्रोजन गैस की तो फायर आग नहीं जलेगी. जो आप अगर आग जलाना चाहेंगे तो नाइट्रोजन की मौजूदगी की वजह से आग बुझ जाएगी. अगर आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो ही जो है बर्निंग का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो पाएगा. तो नाइट्रोजन गैस को हम फायर एक्सटिंग्विशिंग गैस भी कहते हैं. इट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस. आपने अक्सर फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे होंगे, हैंग भी हुए होते हैं नॉर्मली पेट्रोल पंप पर, और उसकी जो है कंपोजिशन बता रहे होते हैं कि इसमें नाइट्रोजन गैस भी मौजूद है, कुछ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद है. तो सो वी कैन से दैट ऑक्सीजन इज द बर्निंग गैस. ये बर्निंग में हेल्प करती है, एंड नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आर द फायर एक्सटिंग्विशिंग गैसेस. नेक्स्ट वन इज दैट ऑक्सीजन इज नीडेड बाय द लिविंग थिंग्स. ऑक्सीजन जो है आपको पहले भी बताया है, वी यूज ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. हम सांस लेने के प्रोसेस, जो हमारा सांस जो हम लेते हैं वो ऑक्सीजन की ही हेल्प से लेते हैं. यू नो दैट वी इनटेक ऑक्सीजन, एंड जो हम आउटटेक करते हैं, जो हम बाहर की तरफ निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है. और ऑक्सीजन इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग. कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर
is used by the plants to prepare during the process of photosynthesis. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम एक्सक्रीट करते हैं, हम बाहर की तरफ निकालते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स जो है यूज करते हैं। गैस ही है ना, एयर है ना, तो हम एयर के ही यूजेस पढ़ लिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज कर ली जाती है बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेटे वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। अब बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर को हम डिस्कस करेंगे कि एयर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके लिए मैंने आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल के लिए भी रखा है, उसमें आप देखेंगे दैट एयर इज कलरलेस। आप देखिए आपके इर्द गिर्द हवा मौजूद है, आप देख सकते हैं हवा को नहीं देख सकते बिकॉज एयर इज कलरलेस, इट इज इनविजिबल टू अस। अब क्या है बेटे, एयर इज कलरलेस, टेस्टलेस, हमारे मुंह का टेस्ट भी चेंज नहीं होता, लेकिन हवा तो देखिए हर जगह मौजूद है। नाइट्रोजन 78% मौजूद है, ऑक्सीजन 21% मौजूद है, लेकिन हमें तो कोई टेस्ट नहीं आ रहा हवा का। अब क्या है, वी कैन नॉट सी एयर, इट हैज नो कलर। प्योर एयर इज ऑल्सो विदाउट एनी टेस्ट और स्मेल। अब बात बेटे यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि प्योर एयर जो है वो हमेशा विदाउट टेस्ट और स्मेल होती है। एयर ऑक्युपाइज स्पेस। अब आप जो है बेटे देख सकते हैं, आप ये बैलून नजर आ रहा है आपको, एयर ऑक्युपाइज स्पेस, ये एयर फिल्ड बलून है। देखें इसमें हवा भरी हुई है, गैसी है ना बेटे, इसको मैंने रखा यहाँ पर, और ये एक बैलून है जिसमें हवा नहीं है। अब यहाँ मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस। एयर जो है वो जगह घेरती है, हवा जो है वो जगह घेरती है। और क्या होता है बेटे, अगर हम इसको ज्यादा जो है ब्लोन करेंगे, ज्यादा एयर फिल करेंगे इसमें, ये क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा। मीन्स एयर प्रेशर भी रखती है, यानी अगर इसका प्रेशर, इस बैलून में हवा भरने का प्रेशर बढ़ा देंगे आप, तो क्या होगा, ये ब्रस्ट हो जाएगा, ये फट जाएगा। मींस एयर कंटेन्स प्रेशर ऑल्सो। इसके साथ बेटे हमने डिस्कस किया था दैट ऑक्सीजन इज द बर्निंग गैस। ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग गैस है, ये जलने के प्रोसेस में हेल्प करती है हमें। कैसे हेल्प करती है, मैं यहाँ एक देखती हूँ, कैंडल है मेरे पास एक, इस कैंडल को मैं ये देखें, ये कैंडल मैंने लाइट अप कर दिया। ये कैंडल जो है बेटे जल गई है। ये क्यों जल रही है, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में, इस सराउंडिंग में ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, अगर मैं इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कर देती हूं बंद, व्हाट विल हैपन। अब ये हवा यानी ऑक्सीजन, एयर की मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रही हूं बेटे। हम देखेंगे, यहां देखेंगे जल रही है, कॉन्टिन्यूसली जल रही है, लेकिन अगर क्यों जल रही है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई बेटे अगर स्टॉप कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ, व्हाट विल हैपन। इसको बंद करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये ग्लास है मेरे पास, मैं ग्लास को, इस कैंडल को कवर कर रही हूं ग्लास की हेल्प से। व्हाट विल हैपन नाउ, देखिए स्टार्ट में जो है वो कैंडल बर्न हो रही थी, मैं आपको और क्लोजली दिखाती हूँ। अब मैं ये उठा रही हूँ तो ये कैंडल देखें स्टॉप हो गई बेटे। अगेन देखिएगा, जो बहुत लाइट इन वेट हो, आप एक स्टिक पर 3 से 4 बैलून जो है वो फिल कीजिएगा, एयर फिल कीजिएगा। आप एक सिरे पर 4 बैलून जो है वो हैंग कर दीजिएगा, और एक सिरे पर, एक एंड पर आप जो है वो 4 बैलून से जिनमें आपने एयर फिल नहीं की वो हैंग कीजिएगा। और इसके सेंटर में आप कोई स्पोर्ट ऐसे कर आपकी बुक में अभी आप एक्टिविटी देख सकते हैं, देखिएगा तो ये जो एयर फिल्ड बैलून्स हैं, ये एंड जो है नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। मींस एयर हैज वेट ऑल्सो। आपने घरों में भी देखा होगा, साइलेंडर अगर आप यूज करते हैं तो साइलेंडर फिल करवाने के लिए जाते हैं 2-3 kg। ये मैं आपको एक जनरल से एग्जांपल दे रही हूँ बेटे, कि आप नॉर्मल अपनी रेगुलर लाइफ से एक एग्जांपल जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं कि आप वो गैस जो है 2-3 kg फिल करवाते हैं साइलेंडर में ना। मीन्स 2-3 kg इज द वेट, द मैस। अब देखिए एयर हैज मैस, एयर हैज वेट सॉरी, एंड एयर ऑक्युपाइज स्पेस ऑल्सो। अब बेटे इसके बाद में आपको एक और प्रैक्टिकल दिखाना चाहती हूँ, वो है दैट ये कैंडल जो है ये बर्न होगी। क्यों, ये कैसे बर्न होगी, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और मैंने आपको बताया था दैट ऑक्सीजन इज द बर्निंग गैस। ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करती है इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। अब बेटे आप देखिए, मैं ये कैंडल लाइट अप करती हूँ, ये कैंडल लाइट अप हो रही है, आप देख सकते हैं बेटे ये जल रही है। क्यों जल रही है ये, क्यों ये कंटिन्यूअसली बर्न कर रही है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई में बंद कर देती हूं तो क्या होगा,
ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देंगे तो क्या ये आग जलती रहेगी, इसकी ये फ्लेम बर्न रहेगा? नहीं रहेगा, ये फ्लेम लाइट अप नहीं होगा, ये बंद हो जाएगा। इसके साथ पहले मैं ये आपको बता दूं कि एयर जो है बेटे, आप हीट एयर, हॉट एयर, अगर आप देखें गर्म हवा जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आप एक प्रैक्टिकल कीजिएगा। अगर तो आप बड़ों की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो ठीक है बेटे, अकेले कभी भी नहीं कीजिएगा ये वाले काम। जस्ट आप देख लें, अगर पेरेंट्स आपके सामने हैं तो आप एक कैंडल लेकर ये कर देख सकते हैं, वरना आप आग के बिल्कुल करीब ना जाएं। अगर प्रिकॉशंस हैं तो आप करीब जाएं। बेटे क्या है, अगर आप एक करते हैं हॉट एयर राइजेस अप, ये बताना चाह रही हूं आपको दैट आप देखिएगा, आपने 6 इंच जो है, ऑलमोस्ट 6 इंच इज द हाफ ऑफ द फीट, आप इस डिस्टेंस पर कैंडल के साइड पर, इस फ्लेम के साइड पर अगर आप हाथ करते हैं, यू विल फील देयर इज नो हॉटनेस, आपको कोई हॉट महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप 1 फीट के डिस्टेंस पर हाथ यहां ऊपर रखते हैं तो आप फील करेंगे दैट आपको हीट महसूस हो रही है। मींस हॉट एयर ऑलवेज राइजेस अप, हॉट एयर हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। यहां आप देखिएगा 6 इंच इज द हाफ ऑफ द फीट, हम बहुत करीब कर रहे हैं फ्लेम के, फिर भी हमें इतनी हीट फील नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 फीट मींस 12 इंचेस आप ऊपर हाथ करेंगे तो आपको फिर भी हीट महसूस होगी। मींस हॉट एयर ऑलवेज राइजेस अप। इसके साथ बेटी एक एक्टिविटी जो मैं आपको बता रही थी दैट ऑक्सीजन हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। आप वो देखिएगा, अभी तो ये ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, मैं इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कर देती हूँ। स्टॉप, आई हैव अ ग्लास, आई पुट दिस ऑन द फ्लेम, मैं इसे फ्लेम के ऊपर पुट कर रही हूँ, रख रही हूँ बेटी ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप करने के लिए। नाउ यू विल नोटिस दैट स्टार्ट में जो है वो फ्लेम बर्न लाइट अप होगा, जलता रहेगा। अभी फ्लेम चल रहा है क्योंकि ग्लास में ऑलरेडी ऑक्सीजन मौजूद थी। अब क्या है, जितनी ऑक्सीजन मौजूद थी ग्लास में वो फ्लेम अपने आप को जलाने के लिए, लाइट अप करने के लिए वो यूज कर चुका। नाउ देयर इज नो ऑक्सीजन प्रेजेंट इनसाइड द ग्लास, व्हाट विल हैपन, द फ्लेम इज आउट। फ्लेम जो है बेटे वो बुझ गया है, अब आग नहीं जल रही बिकॉज ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो स्टॉप हो। आप बेटे अपने ये बुक से एक्टिविटी देख सकती हैं, आपकी बुक में आप कोई एक्टिविटीज दी हुई हैं, ऑलमोस्ट 6 एक्टिविटीज हैं। यू कैन डन दिस एट योर होम। आफ्टर दैट देयर इज डू यू नो एक्टिविटी CFCS, दिस इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बेटे ये एक कूलेंट गैस होती है एंड हम जितने भी नॉर्मल रूटीन में अप्लायंस यूज कर रही हैं जो कूलिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह, कूलर्स वगैरह बेटे, ये इनमें क्लोरोफ्लोरो या CFCS गैस यूज होती है एंड इट इज डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर। ये CFCS गैस जो है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, इट इज क्रिएटिंग द होल इन द ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर आप देख रहे थे, मैंने आपको बताया था दैट ओजोन लेयर क्या करती है, ये स्टॉप करती है सूरज की जो एक्सोस्फीयर से, सूरज की जो नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट रेज जो जमीन तक आती हैं, ये ओजोन लेयर इट्स ऑल्सो नोन एज द ब्लैंकेट ऑफ एयर, ये उसको स्टॉप कर लेती है। नाउ CFCS गैस जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस मैं आपको बता रही हूँ, ये गैस ओजोन लेयर में होल क्रिएट कर रही है एंड इट इज डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर, और ये जमीन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने का जिम्मेदार बन रही हैं। अब क्या है बेटे, एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, ग्लोबल एग्रीमेंट, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स के नेम से जो है वो लिखा गया है। उसमें ये है कि डिफरेंट कंट्रीज ने ये एक एग्रीमेंट किया है कि वो CFCS या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस का जो यूज है वो कम करेंगे ताकि ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन हो रही है उसको स्टॉप किया जाए, उसको रोका जाए, और जो UV रेज जमीन तक पहुंच रही हैं उन्हें भी लिमिटेड किया जाए, उन्हें भी स्टॉप किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज द यूजेस ऑफ एयर। वी आर यूजिंग एयर इज नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग। आपको पता है हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, यू हैव सीन इन द प्रैक्टिकल। नाउ विंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स। आपको पता है हम हवा के जरिए बिजली भी पैदा करें, तो एयर इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली पैदा करने में भी एयर जो है वो इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा इट कूल्स द इंजन। अब हवा से जो इंजन, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मशीन चल रही हैं, लेकिन एयर उन इंजन, वो इंजन की हेल्प से चल रहे हैं ना, मशीनरीज। अब वो मशीन के इंजन जो गर्म हो जाते हैं वो हवा की मदद से जो है वो ठंडे किए जाते हैं ताकि अपना प्रॉपर फंक्शन कर सकें।
Air is filled in tires, pillows, and it allows flexibility. Also, air is filled in the sails, boats वगैरह में हवा, air is lighter in weight, so it can float on the water. जब कश्तियों वगैरह में हवा जो है air filled sails या boats यूज की जाती हैं, तो वो light in weight होने की वजह से पानी के ऊपर easily float कर लेती हैं. Air is filled in footballs. आप देखें फुटबॉल्स में air fill की जाती है, उसे it also gives the shape and keep it tight and soft enough to kick. Air pressure helps in filling ink in a fountain pen ink. आप fountain pen ink में जो इंक फिल करते हैं, आप देखिए उसके अंदर एक वैक्यूम होता है. अब एक प्रेशर पिस्टन होता है जिसे आप बाहर की तरफ जो है वो पुल करते हैं और एयर की जगह वो लिक्विड आ जाती है, आपकी इंक आ जाती है. तो एयर प्रेशर जो है वो आप अपनी फाउंटेन पेन इंक में भी नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज द वाटर. बेटी वाटर हमारी लाइफ में बहुत अहमियत रखता है. हाउ? इट इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सॉल्वेंट बेटे उस लिक्विड को कहते हैं जो अपने अंदर कोई भी चीज डिसॉल्व कर देता है. सो इट इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. मींस मोस्ट ऑफ सॉलिड्स जो हैं, मोस्ट ऑफ मटेरियल्स जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं. पानी की इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो आप पानी पीते हैं, आपको प्यास लगती है, अगर आप पानी वक्त पर ना पिए तो आपकी क्या कंडीशन हो गई, यू कैन इमेजिन. आप सोच सकते हैं बेटे पानी पिए बगैर आपकी क्या हालत होगी. इवन वी कैन डाई, हमारी डेथ हो सकती है बेटे अगर हम पानी जो है वो प्रॉपर नहीं पिएंगे. हमारी बॉडी में जो सेल्स, आपने अगर कभी सुना है दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडीज. हमारा जो सेल एक छोटा सा पार्टिकल होता है बेटे, अगर हम अपनी बॉडी में देखें, ये तो हम ऑर्गेनिज्म है ना, हमारी यूनिट्स अगर हम देखें अपनी एक सिस्टमाइज्ड यूनिट देखें तो उसमें सबसे छोटा जो यूनिट है हमारी बॉडी का वो सेल है. और हमारी सेल में ऑलमोस्ट 65 to 80% वाटर मौजूद होता है. तो अगर हम पानी नहीं पिएंगे हमारा सेल जो है वो सस्टेन ही नहीं करेगा बेटे, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी. अब बेटे हम पानी पर आ जाते हैं. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. We must drink water because our body needs water to carry out most life processes like digestion, circulation, our blood circulatory system. हमारे blood आप देखिए liquid form में है and this liquid form is just because of water. Excretion and excretion. Circulation and excretion. Excretion means हमारी जो liquid waste material वैसे भी excrete होता है in the form of sweating. हमारा पसीना जो हम स्वेटिंग होती है हमें बेटे, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है. अगर स्वेटिंग के साथ हमारे मिनरल्स जो पॉइजनस मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी से वो निकल रहे होते हैं. सो स्वेटिंग इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड फॉर आवर सर्वाइवल. नेक्स्ट इज अदर देन ड्रिंकिंग वी कैन यूज वाटर इन आवर डेली लाइफ फॉर द पर्पसेस ऑफ लाइक क्लीनिंग, बाथिंग, वॉशिंग, गार्डनिंग, कुकिंग. हम पानी जो है इन सब में भी यूज करते हैं. अब बेटे इसके साथ आपके एक वर्ड यूज हुआ है वाटर टेबल, यानी द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड एज द वाटर टेबल. यानी कि पानी की अवेलेबिलिटी जमीन के अंदर जहां जिस लेवल पर हमें पानी जो है वो पीने वाला पानी दरकार होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द वाटर टेबल. नेक्स्ट टॉपिक इज द प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर. प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर मींस पानी को प्योरीफाई करना, साफ करना. आपने देखा होगा बेटे हमारे घरों में नॉर्मली फिल्टर्स लगे होते हैं. क्यों लगे होते हैं? बिकॉज देयर नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन द वाटर. हमें वो इम्प्योरिटीज रिमूव करनी होती हैं. अगर हम इम्प्योरिटी रिमूव नहीं करेंगे, उस पानी में जर्म्स होते हैं, वो जर्म्स हमारे अंदर जाएंगे और बहुत सी डिजीजेस कॉज करते हैं. दोज डिजीजेस आर कॉज्ड एज द वाटर बोर्न डिजीजेस. एंड इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम बेटे मेथड्स भी रीड आउट करेंगे फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. अब पहले मैं पढ़ लूं आपके साथ प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. द वाटर दैट कम्स फ्रॉम द ओपन सोर्सेज ऑफ वाटर. ओपन सोर्सेज ऑफ वाटर से जो पानी आता है, फॉर एग्जाम्पल रिवर है, लेक्स है, इसमें अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं लाइक डर्ट, मड एंड जर्म्स. अब these substances should be removed and these substances are called as the impurities. What they are called? They are called as impurities. अब ये कुछ impurities soluble होती है और कुछ impurities insoluble होती है. For example, impurity आप ले लें सॉइल, मिट्टी को ले लें आप. मिट्टी जो है वो पानी में somehow dissolve हो जाती है. अब कुछ impurities जो insoluble होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं स्टोन ले लें आप, सैंड ले लें आप वो पानी में डिसॉल्व कर देखें, वो पानी में
समहाउ फॉर सम टाइम जो है वो अपने आप को डिसॉल्व करेंगी, बट जब आप उसे सेटल डाउन करेंगे, आप उसे रखेंगे थोड़ी देर के लिए, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो हैं वो एक अपनी सेपरेट लेयर बना लेते हैं। अब जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं बेटे, उन्हें पानी से कैसे जो है वो उनसे पानी को कैसे प्योरीफाई करें और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज से पानी को कैसे प्योरीफाई करें, ये मेथड्स हम रीड आउट करेंगे। आप जो है वो देख रहे होंगे अपनी बुक में, आपको प्रोसीजर नजर आ रहा है, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड डिस्टिलेशन। 2 प्रोसीजर्स आप यहां भी देख सकते हैं, फिल्ट्रेशन एंड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हम कहते हैं निथारने के प्रोसेस को। निथारना मींस, अभी मैं आपको दिखाती हूँ थ्रू द प्रैक्टिकल टू। एंड फिल्ट्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हम फिल्ट्रेशन को डिस्कस कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर पेपर। यू कैन सी दिस इज द फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर है बेटे। इस फिल्टर पेपर को आपने यूज कैसे करना होता है, हमारे पास एक फनल होती है, उस फनल में फिट करने के लिए, या वैसे भी आप यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी फोल्डिंग कुछ इस तरह से होते हैं, हम इसे 3 in 1 जो है वो थ्राइस जो है इसे फोल्ड कर लिया मैंने, ऐसे इसको 4 लेयर्स में फोल्ड कर लिया ऐसे कर। अब क्या करेंगे, आप इसे 3 in 1 करेंगे। आप थ्राइस जो इसकी 3 फोल्डिंग है वो एक साइड पर करेंगे और 1 फोल्डिंग एक साइड पर। आप देख सकते हैं ये 3 फोल्डिंग एक साइड पर हो गई और 1 फोल्डिंग एक साइड पर होगी। आप इसे क्या करेंगे, अभी जो मैं यहाँ आपकी ईज के लिए कर रही हूँ, मैंने इसको एक फनल में जो है वो फिट कर लिया है। नाउ दिस इज द इम्प्योर वाटर। मैंने ये गार्डन सॉइल ली है, गार्डन सॉइल में वाटर ऐड किया है विद द हेल्प ऑफ स्टीरर। आई विल स्टीर इट। मैं क्या करूंगी, इस इम्प्योर वाटर को इस फिल्टर पेपर पर थ्रो कर दूंगी। आप देखिएगा ये जो फ्लास्क है ये बिल्कुल अभी खाली है, इसमें कोई पानी मौजूद नहीं है। बट आई थिंक सो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हमारे पास कुछ जो है वो प्योर वाटर आ जाएगा। यू नो फिल्ट्रेशन इज अ स्लो प्रोसेस, तो ये स्लोली जो है डन होगा। मैं क्या कर रही हूँ, ये इम्प्योर वाटर मैंने फिल्टर पेपर पर गिरा दिया। अब बेटी इसकी ना हमारे पास 2 चीजें हमें मिलती हैं, वन इज द रेजिड्यू एंड सेकेंड वन इज द फिल्ट्रेट। अब वो मटेरियल बेटे, वो लिक्विड जो इस फिल्टर पेपर को क्रॉस कर लेगा वो है फिल्ट्रेट, दैट इज कॉल्ड एज अ प्योर वाटर 2। और वो मटेरियल जो इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा दैट इज कॉल्ड एज द रेजिड्यू। अंडरस्टैंड, रेजिड्यू द मटेरियल लेफ्ट ओवर द फिल्टर पेपर एंड फिल्ट्रेट विच क्रॉस द फिल्टर पेपर। अगर ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ड्रॉप फॉलिंग। अब बेटे आप देखिएगा ये इसी तरह ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं। अभी यहाँ मैंने आपके पास जस्ट फनल रखी है, ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं कॉनिकल फ्लास्क के। इसमें आपने जो है ये 3 in 1 फोल्डिंग फिल्टर पेपर जो है वो प्लेस कर लिया है। ये इम्प्योर वाटर जो है वो थ्रो कर रहे हैं। ये फनल के जरिए फिल्टर पेपर को क्रॉस करेगा। फिल्टर पेपर से जो ये मटेरियल आ गया है ये आपका फिल्ट्रेट कहलाता है, दैट इज प्योर वाटर 2। अब बेटे अगर हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस देखते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो 2 प्रोसीजर से कंप्लीट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन किसको कहते हैं, आबी बुखारात बनने के प्रोसेस को, यानी इसमें छोटे छोटे पानी के कतरे उठते हैं, वाटर वेपर्स उड़ते हैं। अब क्या है बेटे, इवेपोरेशन होती है और कंडेंसेशन होती है। ये क्या है, ये फ्लेम जो है ये बर्न हो रहा है, ये पानी रखा हुआ है, ये इवेपोरेट होगा, वाटर वेपर्स बनेंगे, ये मूव करेंगे थ्रू द कंडेंसर। कंडेंसर जो है ये बेटे कूल कर देता है, वाटर वेपर्स को कंडेंस कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अब ये लिक्विड की फॉर्म में ड्रॉप्स आप देख रहे होंगे इस आपको फनल में नजर आ रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज द डिस्टिल लिक्विड। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ डिस्टिलेशन। अब बेटे नेक्स्ट प्रोसेस है इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के लिए आप देखिएगा इस बीकर में आपको एक सेडिमेंट नजर आ रही है, ये लेयर नजर आ रही है, दिस इज सैंड। ये सैंड है बेटे, रेत मैंने इसमें मिक्स की है। अब क्या था, काफी टाइम से ये पड़ा हुआ है तो जो सैंड है वो सेटल डाउन हो गया, उसने एक सेडिमेंट अपनी एक लेयर बना ली है। अब अगर मैं इसे मिक्स करती हूँ ना, ये देखें ये मिक्स हो गया, ये सैंड वाटर में इस वक्त मिक्स हो गया। अब आफ्टर सेडिमेंटेशन आई कैन सेपरेट आउट द क्लियर वाटर विद दिस फ्रॉम दिस सैंड। मैं क्या करूंगी, इसको इस तरह से सेपरेट आउट करूंगी। ये थोड़ा टाइम के लिए मैं इसे रख देती हूँ क्योंकि ये अभी मिक्स हो गया है बेटे। फिर मैं आपको बताती हूँ सेडिमेंटेशन से हम पानी को जो है वो कैसे प्योरीफाई कर लेते हैं। ये देखिएगा क्लोज की, ये ड्रॉप,
ये पानी का ड्रॉप जो है वो इससे स्लो स्लो प्योर वाटर जो है वो थ्रो हो रहा है, फिल्टर पेपर को क्रॉस कर रहा है। अब ये पानी जो इस फनल में कलेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज द फिल्ट्रेट। नेक्स्ट प्रोसीजर एक क्लोरीनेशन का प्रोसीजर भी होता है। क्लोरीनेशन में क्या होता है, क्लोरीन गैस जो है वो पानी से गुजारी जाती है और क्लोरीन गैस जो है वो हेल्प करती है पानी में जितने भी जरासीम मौजूद होते हैं उनको किल करने में। इसके बाद बेटी आपकी एक्सरसाइज आ जाती है। आप एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ नोट्स। नोट्स जो है वो आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में स्कूल से मिल जाएंगे। आपने एक्सरसाइज पार्ट ए बी जो है वो अपना बुक पर सॉल्व करना है। इसके साथ ही आपका ये टास्क मौजूद है। इस टास्क में आपने क्या करना है, वर्ड्स आर गिवन इन योर टास्क। आपने ये नेम्स जो हैं ये मिक्स वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इसमें से सेपरेट आउट करने हैं। जैसे यहाँ मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, आपने उन्हें सर्कल कर लेना है, ठीक है, अंडरलाइन कर लें, हाईलाइटर यूज कर लें। तो आपने ये टास्क ए और बी पार्ट बुक पर करेंगे। नाउ यू नो एक्सरसाइजेस हैं आपके, वर्क पेजेस जो हैं वो भी आप सॉल्व करेंगे। अपना सी और डी पार्ट आपका क्वेश्चन आंसर्स का एरिया है वो आप अपनी नोटबुक पर राइट करेंगे। इसके साथ बेटे और लर्न भी करेंगे। आपकी डायरी जो है वो है आपने ये पूरा चैप्टर नंबर 11 को रीड करना है और इसके तमाम वर्क पेजेस एंड लर्न इट्स ऑल वर्क पेजेस प्लस एक्सरसाइज। इसके साथ ही आपकी अपनी नोटबुक में डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये जो लेयर्स हैं आपने ये अपनी नोटबुक में बेटे बहुत नीटली बहुत प्यारी कर ड्रॉ भी करनी है। अब बेटे ये प्रोसेस मैं आपको एंड कर दिखा दूं। ये फिल्टर पेपर में रिमूव कर रही हूं, आप ये देख लीजिएगा। दीज आर कॉल्ड एज रेजिड्यू। रेजिड्यू आप देखिए फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया और ये कुछ पानी जो है यहाँ कलेक्ट हुआ है। दिस इज द फिल्ट्रेट। ये आप देख सकती हैं, इज दिस विजिबल टू यू? ये कुछ फिल्ट्रेट जो है इसमें कलेक्ट हो गया। दिस इज प्योर वाटर। अब सेडिमेंटेशन की बात करते हैं। सेडिमेंटेशन में आप देखिए ये सैंड जो है वो समहाउ इसे मैं 10 मिनट्स के लिए अगर सेटल डाउन करूं तो ये लेयर जो है वो प्रॉपर हो जाएगी और पानी जो है वो क्लीन ऊपर हो जाएगा। इसे मैं बिना हिलाए ऐसे निथाड़ लेती हूं। ऐसे इस ग्लास में ऑलरेडी स्मोक मौजूद था, यहां पे इसे आपने हिलाए बगैर जो है वो पानी को सेपरेट आउट कर लेना है। ज्यादा हिलाएंगे तो सैंड जो है फिर से उसमें मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। somehow sand and water is separated out in the form of sediment. So बेटे इसे लर्न करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।